Hello friends, this is Dr. Ranjit Singh once again with you. Today we will discuss the 15th century literature written in English language. Basically from 1400 up to 1516. This 15th century was barren period in the history of English literature. It was not an age of great men in any field. Though Geoffrey Chaucer made a brilliant beginning, his succeeding generations were powerless to produce anything which could equal Chaucer's Canterbury Tales. England took almost 1.5 centuries to produce a poet worthy to the rank of Chaucer. The poets of his succeeding generations could neither imitate him nor understand his versification. अगर हम बात करें बेसिकली तो चाउसर की जो फॉलोइंग एज है जिसे 15th सेंचुरी कहते हैं, इस एज को बैरन पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि देयर वाज एन अटर डर्थ ऑफ टैलेंटेड पोइट्स का टोटली अभाव था. इट वाज एन एरा ऑफ चाउसर्स इमिटेटर्स. जो पोइट्स थे वो चाउसर की वर्सिफिकेशन को, चाउसर की पोइट्री को, उनकी स्किल्स को इमिटेट करके पोइट्री लिखा करते थे, इसीलिए द ओरिजिनलिटी वाज मिसिंग. डब्ल्यू.एच. हडसन जो कि पॉपुलर क्रिटिक है, उन्होंने लिखा है कि 15th सेंचुरी जो है इट वाज अ लॉन्ग बैरन पीरियड. उनके कहने का मतलब था कि नो टैलेंटेड पोइट हु कुड रैंक विद चाउसर was born during this period. चाउसर इस एज में भी रिप्रेजेंटेटिव पोइट थे, क्योंकि चाउसर एक्सप्रेस फ्री सेकुलर स्पिरिट with remarkable technical excellence in his poetry. Chaucer was endowed with a forward-looking quality and anticipated modernity in numerous ways in literature. जबकि उनके सक्सेसर्स जो थे, they had no such skills. There were many factors responsible for this unproductiveness of the age, like political conflicts, deficiency of poetic understanding, no free movement of thought, poor state of education, etc. First, the country was disturbed on account of political conflicts and struggle of power. आप पढ़ेंगे कि दो डायनेस्टीज के बीच में स्ट्रगल ऑफ पावर चल रहा था 1455 से लेकर 1485 तक. ये जो 30 इयर्स हैं इन इंग्लिश हिस्ट्री, इसमें अ सीरीज ऑफ डायनेस्टिक सिविल वॉर्स टुक प्लेस बिटवीन द हाउसेस ऑफ यॉर्क एंड लैंकेस्टर. ये जो दो डायनेस्टीज थी, इनके बीच में एक स्ट्रगल चल रहा था फॉर द इंग्लिश थ्रोन. व्हाइट कलर का रोज यॉर्क डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता था और रेड रोज लैंकेस्टर डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता था. इसीलिए 30 इयर्स स्ट्रगल को हम वॉर ऑफ रोजेस भी कहते हैं. इन दीज वॉर्स मैनी ग्रेट नोबल्स वर किल्ड एंड फ्यूडलिज्म वॉज बैडली शेकन at its foundations. जो दूसरा रीजन था बैरननेस का उस एज की, वो था कि रिलीजन कंटिन्यू टू डिक्लाइन एंड डिजेनरेट, रिजल्टिंग इन परसिक्यूशन एंड स्टॉपिंग फ्री मूवमेंट ऑफ थॉट. जैसा मैंने पहले कहा है कि जो फ्री मूवमेंट ऑफ थॉट था स्कॉलर्स के बीच में, वो रिलीजन ने सप्रेस कर दिया. जो थर्ड रीजन था वो था कि द लो स्टेट ऑफ एजुकेशन also affected the growth of literature. The mental activity in the universities was wasted in endless and profitless controversies over the medieval philosophy. न्यू थॉट्स के लिए प्लेस ही नहीं था, केवल मेडिवल फिलॉसफी के ऊपर डिस्कशंस चलते रहते थे, डिबेट्स चलती थी. एक और रीजन था बहुत इंपॉर्टेंट, वो था कि द पोइट्स ऑफ दिस सेंचुरी वर जनरली इमिटेटिव इन नेचर. They were not original in writing.
Nearly all the poets tried to walk in Chaucer's footsteps and labored to produce his matter and style. अब अगर हम बात करें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करने के लिए कि हालांकि बहुत सारी कमियां थी इस एज में, इसीलिए इस एज की पोइट्री को बैरन कहा जाता है, इस एज को बैरन कहा जाता है क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव पोइट्री नहीं लिखी गई. बट एट द सेम टाइम it was an age of preparation also. The 15th century was the seed time for the generations of literature of high order in times to come. जो रनिशा आने वाला था उसके लिए seeds सो किए गए थे इसी टाइम. The most important point was that the introduction of the printing press by Caxton in 1476 was a historical event which made it possible for a book or an idea to reach the whole nation. Greek ideas and Greek culture gradually became popular. Men's spiritual freedom was proclaimed in Reformation. Reformation was a movement that took place around 1517. जो schools और universities थे, they were established in place of monasteries. पहले monasteries establish किए जाते थे, अब schools और universities को establish किया गया. With the growth of commerce, men traveled about more. Great explorers, they discovered new trade routes और अमेरिका की खोज भी इसी दौरान हुई थी. Ranisha was at hand. What the 15th century contributed to prose, drama and ballad literature is enough to show कि हम इस एज को अगर जस्ट रूप में कहें तो it was a seed time of English literature. इस एज की हम पोइट्री को डिस्कस करें तो मैंने पहले भी बताया है कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ पोइट्री इज इमिटेटिव. जो राइटर्स थे दे वर बेसिकली इमिटेटिव इन नेचर. चाउसर वॉज इमिटेटेड बोथ इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. जो स्कॉटिश चाउसरियंस थे दे शोड साइंस ऑफ फ्रेशनेस एंड ओरिजिनलिटी कंपेयर टू English Chaucerians. The English Chaucerians were poor imitators of their master's style, master's art, and they contributed nothing to the advancement of the poetry during the 15th century. इसीलिए जो Scottish Chaucerians थे, they were more original in nature. पहले बात करते हैं हम द इंग्लिश Chaucerians कौन कौन से थे जो इंग्लैंड में पोइट्री लिखी जा रही थी. उनमें कौन कौन से पॉपुलर पोइट्स थे who were following the traditions and the style of Geoffrey Chaucer. उनमें जो एक नाम आता है वो है टॉमस ऑक्लीव का. टॉमस ऑक्लीव के जो प्रिंसिपल वर्क्स थे दे इंक्लूड द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस. और ये जो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है इट वाज रिटन फॉर द ग्लोरिफिकेशन और एडिफिकेशन ऑफ हेनरी फिफ्थ. एक और वर्क है ला मेल रीगल जो कि ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है. एक है द कंप्लेन ऑफ आर लेडी और ऑक्लीव्स कंप्लेन. ये मेजर वर्क्स हैं. इन सारे वर्क्स में देयर इज नो ओरिजिनलिटी इन हिज पोइट्री. ही अपीयर्स टू बी अ डल एंड अनइंस्पायर्ड इमिटेटर ऑफ चाउसर ओनली. हिज स्टाइल इज decadent and shows the rapid degeneration that set in after Chaucer's death. His meter, usually the rhyme royal or couplets, is loose. एक और इंपॉर्टेंट पोइट है जिनका नाम है जॉन लिडगेट. लिडगेट जो थे ही वॉज ए लर्नेड मॉन्क ऑफ बरी सेंट एडमंड्स एंड ही वॉज द मोस्ट प्रोलिफिक पोइट ऑफ द पीरियड. उन्होंने लिखा है द स्टोरीज ऑफ थीव्स, द ट्रॉय बुक, फॉल्स ऑफ प्रिंसेस, लंदन लेक पेनी. ही ऑल्सो इमिटेटेड चाउसर विद मोर लेबर देन स्किल. द स्टोरी ऑफ थीव्स जो इनकी एक बुक है इट्स सपोज्ड एडिशन टू द कैंटरबरी टेल्स. उसी का एक एडिशन लगता है. ही वॉज नॉट ए स्किल्ड मेट्रिस्ट. मीटर वगैरह में बहुत ज्यादा स्किल नहीं थी. हिज पोइट्री हैज नन ऑफ द पोएटिक ग्रेसेस ऑफ चाउसर. ही शेयर्स द कॉमन वाइसेस ऑफ द टाइम. वही prolixity, लैक ऑफ ह्यूमर, पेडेंटिक एलिगरी, ये सारे फीचर्स उनकी पोइट्री में मिलते हैं.
अनदर इंपॉर्टेंट पोइट जो हैं इंग्लिश चौसरियंस में, उनका नाम है स्टीफन हॉज। स्टीफन हॉज हैड एन एप्टीट्यूड फॉर एलिगरी राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। एज एन इमिटेटर ऑफ चौसर, he was highly influenced by the French aspect of his master's genius. स्टीफन हॉफ्स जो थे वो चौसर के फ्रेंच वर्क से ज्यादा इंस्पायर्ड थे, लाइक रोमेंट ऑफ द रोज, बजाय इंग्लिश वर्क्स के लाइक द कैंटरबरी टेल्स। स्टीफन हॉफ्स के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं द पास टाइम ऑफ प्लेजर, द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, द कन्वर्जन ऑफ स्वेयर्स और है द जॉयफुल मेडिटेशन। स्टीफन हॉफ्स इज द मोस्ट अनइंस्पायर्ड अमंग द इंग्लिश इमिटेटर्स ऑफ चौसर। इनके जो एलिगोरिकल मेथड्स हैं वो बहुत क्रूड हैं और उनका स्टाइल जो है वो स्पॉइल हो जाता है बाय द अबंडेंट यूज ऑफ लैटिनाइज्ड वर्ड्स। अपने स्टाइल में लैटिनाइज्ड वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज किए हैं। हिज ओनली रिडीमिंग फीचर इज दैट हिज पास टाइम ऑफ प्लेजर इन्फ्लुएंस स्पेंसर। इनका नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका एक वर्क था द पास टाइम ऑफ प्लेजर, जिससे कि एलिजाबेथन, एक बहुत पॉपुलर पोइट है एलिजाबेथन एज के, एडवर्ड स्पेंसर, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वर्क। नेक्स्ट इंग्लिश चौसरियन पोइट जो हैं उनका नेम है जॉन स्केल्टन। स्केल्टन whose work comprises, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं The Book of Colin Clout, Why Come You Not to Court, Book of Philip Sparrow, The Tuning, Dirge on Edward IV and The Brows of Court। जो The Brows of Court है, यही वर्क was the most original and spirited English Chaucery। जॉन स्केल्टन की जो फीचर्स थे वो थे जॉन स्केल्टन हैड लिटिल सेंस ऑफ ब्यूटी, लेकिन अपने मेडिकल स्किल्स को एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज किया है। लाइक अदर इंग्लिश चौसरियंस, जॉन स्केल्टन ही ऑल्सो स्टार्टेड हिज करियर इन कन्वेंशनल एंड इमिटेटिव मोड बट सून ब्रोक अवे विद इट। जॉन स्केल्टन के जो लेटर वर्क्स हैं दे हैव फ्रेशनेस एंड इंडिविजुअल फ्लेवर। John Skelton was a moralist with a message for his generation. He attacked the abuses of the church and the court. He appears at his best in his satires. उनकी जो satirical poems हैं उनमें है Why Come You Not to the Court, और ये बहुत sharp, witty tone में